दोस्तों, एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है आपके सपनों से, सही फैसलों से, परिवार से। और हर घर तभी पूरा होता है जब हर ब्रिक सही जगह पर रखी जाए। पर घर बनाना इतना आसान नहीं होता है। सवालों का सिलसिला बहुत लंबा है। कौन सी प्रॉपर्टी लें, रेरा क्या है, होम लोन कैसे मैनेज करें, वास्तु से लेकर इंटीरियर्स तक, फ्लोरिंग से लेकर प्लाईवुड्स तक, लैमिनेट्स और मॉड्यूलर किचन्स, और आज के ज़माने के मस्ट हैव्स, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, और वो एक फाइनल मैजिक टच, होम स्टाइलिंग, ब्रिक बाय ब्रिक। ये एक 11 एपिसोड्स का सफ़र है। यहाँ एक्सपर्ट्स देंगे आपको वही आंसर्स जो आपको अपना ड्रीम होम बनाते वक्त चाहिए। मैं हूँ आपका होस्ट ऋषि राज कैर, और चलिए शुरू करते हैं एक एक ब्रिक से, ब्रिक बाय ब्रिक, जहाँ हर ब्रिक ले आए आपको अपने ड्रीम होम के एक और कदम करें। नमस्ते और वेलकम टू ब्रिक बाय ब्रिक, जहां हर एपिसोड बनाता है आपका सपनों का घर थोड़ा और स्मार्ट, थोड़ा और स्टाइलिश। मैं हूं ऋषि राज कैर, एंड टुडे वी आर एंटरिंग द हार्ट ऑफ योर होम, योर किचन। बट नॉट just any kitchen. We are talking about modular kitchens, stylish drawers, smart storage, clutter free counters, और सब कुछ एकदम कस्टमाइज्ड। लेकिन बायर के दिमाग में हमेशा कई सवाल होते हैं। मॉड्यूलर का मतलब क्या, कितना बजट लगता है, एक्रेलिक, लैमिनेट्स, मेम्ब्रेन, ग्लास, कौन सा फिनिश बेटर है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब कितना टाइम चलेगा। तो आज के एपिसोड में हम बनाएंगे एक परफेक्ट रेसिपी फॉर योर ड्रीम किचन। और हमारे साथ हैं स्टूडियो विस्तारा से मिसेस मोना पटेल, एक आर्किटेक्ट जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ किचन डिजाइन किए हैं, हर साइज और हर स्टाइल के लिए। वेलकम मोना जी। थैंक यू ऋषि राज। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और मोना जी, एक सबसे बेसिक सवाल कि जो कस्टमाइज्ड किचन होता है और मॉड्यूलर किचन, जो कारपेंटर मेड किचन होता था, और ये जो मॉड्यूलर किचन है, इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है? मॉड्यूलर किचन वर्सेस कारपेंटर मेड किचन इज मेनली दो, मतलब इट्स differentiate in two criteria. Like modular kitchen is very much like factory made with the precision, with the very clean line, and very much with a lot of options available for material में. और जैसे carpenter traditional kitchen है, your selections of materials are limited because of it's a completely based on your skill of your carpenter and how they finishes and how they have that skill to manage with that their capability. So that means modular kitchens they are factory fitted, factory made. Yes, absolutely. Machine made. Machine made. Okay. Factory made shutters, and with the all precisions, they come and install the kitchen in your home. So, and it is less time consuming also, and if it's pre-planned, so it is in that fixed given time they deliver the kitchen. Carpenter may, it depends on their availability, their team, everything is depend, and the skills, everything, and it depends on their, वो डिपेंडेंसी हो जाती है एक दूसरी एजेंसी के ऊपर. सो कारपेंट्री जब टीम ये फिनिश करती है किचन, तो उसके साथ साथ देयर आर फिनिशेस के लिए देयर आर अदर टीम्स, तो वो इंटरडिपेंडेंट रहता है, तो उसकी वजह से मे बी इट कैन गेट डिलेड आल्सो, and there are no fixed time limitation because everything is depend on each other. So can we consider it as a luxury thing, modular kitchen? I won't say now modular kitchen is very much in it's a utility now. It's a utility and very functionalized method of handling spaces. So it is definitely in thing nowadays, and it's more convenient and more flexible in terms of planning. We talk about normal middle class family. There also it is practical to have a modular kitchen. Absolutely. So it completely depend on what material you choose with. So market is giving many options to that to customize it as per your budget. And you have all the options available to choose from, so you can always plan accordingly. And I would suggest that definitely you should look into planning, priority honi chahiye pehle. So it can be worked out very well for your home. So you talked about budget. So when a client can make the budget of this modular kitchen, कि कौन सा ऐसा टाइम होना चाहिए जिस वक्त वो बजट कर सकता है? It's not about timing, it's about how you can
plan modular kitchen budget wise. So I would say I will divide this in 3 phases. Modular kitchen generally. So what are there in modular kitchen? First of all, it's all storage cabinets. All storage So your cabinet. 50 to 60% of your budget you have to dedicate to your storage system. Oh, is that Cabinetry system. So that is the major chunk where the money will Money go goes, in. okay, Yes. okay. After that, you can give a budget for your appliances. What are you keeping as an appliances? Inbuilt system, loose systems. How much? So probably 15 to 20% will go in there, managing that kind of appliances ka budget hai. Then third comes as your finishes, countertop finishes, dado finishes. So ultimately you have to decide how your kitchen functions are and where you want to prioritize your budget. So especially what things we have to take into consideration, especially for small kitchens or L-shaped kitchens. They're very the very specific design kitchen. So L-shape. that comes under planning. That comes basically. under planning. Yes. So there are many layouts for kitchen, but ultimately एक फंक्शन होता है किचन का, इट्स अ ट्रायंगल फंक्शन. सो उसको भी हम 3 जोन में जैसे डिवाइड करें. देयर इज अ किचन कुकिंग एंड प्रेप जोन. Okay. There is a refrigeration zone and there is a wet zone. Oh. So every kitchen has to be planned accordingly and managed to work functionally in this 3 zone basically. Okay. So any layout you have to prioritize that this 3 triangle zones should function well. That helps you to develop a better circulations within the kitchen itself and proper management of the things. Amazing answer. It has to be designed zone wise. Yes. Storage zone, then appliances zone. Yes, absolutely. दूसरा एक जो आजकल एक कंसेप्ट है वर्क आइलैंड का, ठीक है ना, या फिर अगर हम बात करेंगे कुछ जोन्स बनाने का, करेक्ट, ठीक है ना, तो ये इसका मतलब क्या होता है? जो आइलैंड एक वर्ड यूज होता है किचन में, उसका क्या मीनिंग होता है? It depends again based on your how much space you have in your kitchen. First, if you are set with this 3 zone, placing this 3 zone functionally, उसका आपका ये solve हो गया. If you are left out with the central space, enough space. I see. अच्छा, वो जो सेंटर में ऐसा, okay, उसको आइलैंड बोलते हैं. So that is an island which you have to at least minimum वो island के आसपास you should have minimum 1.2 meter spaces for circulation movement to operate all the cabinetry. Right. If fridge है, oven, pantry zone है, उन सबको operation के लिए you need that minimum space. If you are getting sufficient space, you are always allowed to have if we are getting the sufficient space, तो उसकी रियल में यूटिलिटी होती है? Yes, of course. It again depends how your needs are, you know, who are using the kitchen basically. जैसे while you are cooking, जो lady है घर की, वो cook करती है, उसके time what are the other function going on within the home? बच्चे आते हैं, बच्चे वहीं पे खाते हैं या वहीं पे homework भी कर सकते हैं. So it's a multi-purpose thing. It cannot be dedicated to just one person की चलो ये वहाँ पे हमने sink रख दिया तो वही उसी के लिए use होगा. Not necessary that वहाँ पे आपने cooking top रख दिया तो वो cooking के लिए. It's completely depend what kind of utilize आपका utilization कैसा है space का, and also your lifestyle also depend on that very much. अच्छा, किचन के जैसे डिजाइन होते हैं, एक कुछ एल शेप के किचन्स हैं या यू शेप के किचन्स हैं या पैरेलल किचन्स हैं, तो इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं क्या? अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और इसके डीमेरिट्स क्या होंगे? Same thing, functionality. If you've been able to set the triangle properly, everything suffice well. Okay. Majority the best layout is the parallel kitchen का layout, where you have 2 aisles and उसमें properly suffice होते हैं ये तीनों aisle जो function मैंने बोले आपको वो properly suffice होते हैं. Suffice होना चाहिए. U shape is definitely provide you with larger storages. You are getting 2 corners, dead corners to maybe you can plan things accordingly. And maximum storage facility अपने हमको U shape corner में मिल जाती है. और U shape में भी हमको ज़्यादा storage facility मिलती है. So आपके हिसाब से
जो उसके चैनल्स होते हैं या जो हिंजेस होते हैं, उनका कितना बड़ा रोल होता है? Very much. Very Very much. much. Again, all depends on your budget part. There are many options in market. So, जैसे इंडिया में बोले तो its basic level starts with EPCO and Godrej. And Asian Paints have already introduced the sleek के सारे hardwares हैं. So that is to start with. If you want to little bit go upgrade, Hetic है, उसके साथ Grass है. All these are German and European brands. उससे over थर्ड स्टेप में जाएंगे, देन यू हैव हाफले, ब्लम के सारे फिक्चर्स हैं. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स हाउ मच यू वांट टू स्पेंड. ऑप्शंस ऑल अवेलेबल विद यू. तो ये जो ऑप्शंस हैं, ये तो हम जो कारपेंटर मेड किचन्स हैं, जो एक बायर, जो क्लाइंट अपने सामने खड़े होके बनवा रहा है, वो ला करके उसको देगा और वो फिटिंग कर सकता है. तो क्या ये जो मॉड्यूलर किचन्स जो फैक्ट्री से बन करके आ रहे हैं, तो ये वो लोग भी यही सब एक्सेसरीज यूज करते हैं? दे हैव ऑप्शन ऑफ गिविंग यू what kind of brand they are dealing with. So they comes with the warranty. And they always offer you with certain period of guarantee and warranty. To anything damage happen, they come and change it also within their frame of period. Okay. इसकी वारंटी भी देते हैं वो लोग? Yes. Okay. They do. दोस्तों, यहाँ पे हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद मोना जी के संग में डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा. आप कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक टू ब्रेक बाय ब्रेक. और यहाँ हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था मोना जी के साथ. मोना जी, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो किचन के जो कैबिनेट्स होते हैं, इनका डिज़ाइन करते वक्त जो मटेरियल चूज़ करना चाहिए, वो MDF करना चाहिए या प्लाईवुड करना चाहिए या और कोई तरीके का मटेरियल हो सकता है? Yes, definitely. For kitchen, there are only two material you should opt for. एक है अपना HMR, which is high moisture, high density, high moisture material. Okay, HMR. हाँ. Okay. So that is again a type of MDF. Okay. But it has a quality of moisture proof and high density material. Generally, regular MDR say it is a better quality material. Okay. Second is you should always use a waterproof ply material. Waterproof ply. Yes, absolutely. Marine ply. Marine ply. Yes. So these two are the only good option for kitchen, I would say. And as far as if you are consulting any modular kitchen vendor, you should always check पहले कि एडवांस में कि वो कौन सा मटेरियल उसकी कैबिनेटरी में, काकस में क्या यूज कर रहे हैं, और उसके शटर पैनल पे वो लोग कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं. वंस दे हैव दिस काइंड ऑफ मतलब उनकी जो आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, तो आप यू शुड कनेक्ट विद देम. तो वो तो जब जिस वक्त क्लाइंट कोई भी कस्टमर होगा, कोई भी बायर होगा, वो अगर ऑर्डर जब कर रहा है, हाँ, तभी उनको ये इंक्वायरी करनी चाहिए. हाँ, नहीं तो बाद में फिर है ना कुछ. यस, यू शुड मतलब कंप्लीटली उन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट आपको भी थोड़ा एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए मॉड्यूलर सिस्टम कैसे काम करता है, और उसमें क्या क्या मटेरियल यूज हो रही है, कौन सी हार्डवेयर सिस्टम यूज हो रही है, और वो आपके बजट के साथ कितनी मैच हो रही है. और उनके बिल जब लेंगे तो उसमें वारंटी कितनी लिखी हुई है उसमें, तो ये सब चेक होगा, तो उससे काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएगा क्लाइंट. अच्छा, कुछ किचन के लिए स्पेशल कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जो प्रोडक्ट की, दैट इज़ अगर हम बात करें एक्रेलिक है, लैमिनेट है, या फिर कोई मेम्ब्रेन फिनिश है ना, तो इसका नाम के हैं या इनकी कोई फंक्शनैलिटी भी होती है, कोई इनका स्पेसिफिक यूज? ये सारे मटेरियल है वो फिनिशेस के मटेरियल है जो आपके शटर के ऊपर एप्लीकेशंस होते हैं. कार्कस मटेरियल एक जो हो गया वो तो अपना वाटरप्रूफ प्लाई का जो हो गया, वो प्रॉपर हो गया. ये सारी जो फिनिशेस है वो अवेलेबल है फॉर ओनली फॉर शटर्स, पैनल लुक्स के लिए. तो इट स्टार्ट
ये जैसे हम शुरू करेंगे वो लैमिनेट से, तो लैमिनेट इज बेसिक मटेरियल टू मैनेज विद। उसके ऊपर हम जाएंगे तो प्रोबेबली उससे थोड़ा प्रीमियम जाएंगे तो वो एक्रिलिक आएगा, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो मे बी ग्लास शटर्स बनेंगे। अभी तो ये सारे स्टोन लैम्प भी आ गए हैं, अच्छा, which is high end product. So these are all finishes. Membrane, I would say it is more flexible material to deal with, or maybe in future if you change frequently your shutter applications, so it membrane is like a film. अच्छा, It is just a overlap on your shutter, molded shutter है या plain shutters है, तो उसकी edges भी उस membrane उस से हिसाब से cover हो जाती अच्छा है अच्छा अच्छा अच्छा, completely. ओके। सो विच ऑल्सो थोड़े टाइम पे आप अगर आप चेंज करना चाहे तो वो भी चेंज हो सकता है कम्प्लीटली, वो तो आपको एक नया लुक मिल जाएगा। अच्छा, एक नया लुक मिल जाएगा। अच्छा, वो मेम्ब्रेन को निकाल दिया और दूसरा करेक्ट नया मेम्ब्रेन लगा दिया। करेक्ट। पर उसकी अपनी खुद की मतलब जब तक नहीं निकालेंगे तब तक वो इंटैक्ट रहेगा पूरा। आई वुड नॉट से कि वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच रेजिस्टेंस में। कभी भी अगर बहुत शार्प चीज लगे तो वो ब्रेक भी हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ फिल्म ऑन और योर जो शटर। उसके जो हिंजेस होते हैं वो कैसे होना, मतलब सॉफ्ट क्लोज आजकल तो हैं ऐसे। ऑल हिंजेस, बहुत टाइप के हिंजेस है, बट इट्स ऑल डिपेंड आपका डिजाइन का क्या है। ओके। सो इट जैसे ओवरलैप शटर्स है, आपको फ्रेम दिखानी है, फ्रेम नहीं दिखानी है, अच्छा, शटर्स को पूरा 3 मतलब पूरा 180 डिग्री पे खोलना है। सो ऑल दिस हिंजेस के सिलेक्शन से डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट पूरा। रिक्वायरमेंट और कैसे डिजाइन कर रहे हो आप किचन की ओके 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 फर्नीचर डिजाइनिंग। ओके। तो ये जो मतलब जो आपने जैसा बोला कि ये जो क्लाइंट जो भी है, बायर है, जो भी होम मेकर है, वो उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ डिजाइन किया जा सकता है। करेक्ट। तो ये उसको सॉफ्ट क्लोज चाहिए, वैसे सॉफ्ट सॉफ्ट क्लोज। क्लोज और रेगुलर हिंजेस में इट इज द ओनली फंक्शन की सॉफ्ट क्लोज इट्स कि आपका अगर रफ यूज है तो वो प्रॉपरली वो सॉफ्ट क्लोज मतलब रैंडमली वो एक आवाज से बंद नहीं होगा, इट जस्ट सॉफ्टली क्लोज होके वो नॉइज नहीं क्रिएट नॉइज नहीं करेगा। क्रिएट करेगा। बट आई वुड से कि ये हिंजेस की सारी जो यूज है इट्स मेनली ऑन योर कैबिनेटरी के डिजाइन के ऊपर डिपेंड। और ये सॉफ्ट क्लोज की ड्यूरेबिलिटी अच्छी, यस, मतलब लाइफ अच्छी रहती है। इट मॉड्यूलर किचन है तो आप जिससे डील कर रहे हो वही आपको गारंटी दे रहा है सारी ओके। हिंजेस और हार्डवेयर सिस्टम के तो। और ये जो काउंटर टॉप्स होते हैं किचन में, हम्म। इसके ऊपर यूजुअली कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, मतलब अगर बात करें ग्रेनाइट की, क्वार्ट्ज की, या फिर कोई और। सो अभी काफी सारे मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है, हम्म स्टार्टेड विद पोर्सलिन टाइल स्लैब्स अभी मिल रहा है, दैट इज अ न्यूएस्ट मतलब हम्म इंट्रोड्यूस किया हुआ मटेरियल है। ओके। उससे पहले था क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज आल्सो बिन वाइडली यूज हो रहे हैं अभी किचन काउंटर पे। और सबसे पहले जो अपना पुराना था वो ग्रेनाइट, जो हम ग्रेनाइट, बरसों से यूज बरसों, करते आए हमने हैं बचपन से पढ़ा। अपने इंडियन किचन में, वो ग्रेनाइट को कोई बीट नहीं कर सकता। कोई बीट नहीं कर सकता। सो इट बॉइल्स डाउन टू कौन यूज कर रहा है किचन, आप खुद यूज कर रहे हो, डोमेस्टिक हेल्प यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी उसकी जो वर्केबिलिटी और सिलेक्शंस ऑफ काउंटर टॉप से वो डिपेंड करते हैं। अगेन ग्रेनाइट है, उसमें लिमिटेड चॉइस है, यू आर डीलिंग विथ ओनली फ्यू कलर्स, ग्रे टू ब्लैक। हाँ, सो उनमें वो लिमिटेशन चॉइस आ वो जाती है कलर। लिमिटेड आ जाती है ग्रेनाइट में। क्वार्ट्ज में यू हैव मेनी कलर्स, उसमें हम्म बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ओके। तो वहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। क्वार्ट्ज में थोड़ा एक जो इश्यू है दैट इज हीट रेजिस्टेंस है वो। ओके। ज्यादातर इमीडिएट आप कुछ भी गर्म बहुत सारी कोई चीज अगर काउंटर पे रख दी तो इट माइट नॉट वर्क वेल, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स एन इंजीनियर्ड स्टोन, ओके। तो वो रेजिन से बना हुआ होता है, तो मे बी वो अंडुलेशन या कुछ आ सकता है कभी भी, तो वो हाँ थोड़ा आपकी जो यूजेज है उसमें थोड़ा ध्यान हाँ, रखना मतलब वो जो पड़ता है। गरम कस्ट जहाँ पर आपको हाँ, यूज करना है एटलीस्ट वहां पर यस, ना करें, उसके लिए करेक्ट उसको ध्यान। करेक्ट। पर आपने बोला ना आपके हमारे इंडियन किचन्स में वो ग्रेनाइट यूज हो हाँ, रहा उसको नो है। वन कैन उसको बीट कोई अभी। बीट नहीं कर सकता। बट अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे इंडियन किचन्स में भी हमने शुरू से देखा था कि बर्तन बहुत सारे होंगे। आज भी राशन लोग भर के पूरा एक साल का होना चाहिए, गेहूं चावल, मसाले बहुत सारे होते हैं। तो ये स्टोरेज की एक स्मार्ट प्लानिंग अगर बोली जाए तो वो कैसे करी जाए? डेफिनेटली यू कैन प्लान विद द सेम, ऑर्गेनाइजिंग योर स्टोरेज वेल इन एडवांस। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टोरेज कितने हैं और कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। किचन की मेन फंक्शनैलिटी है वो है वेल प्लानिंग। अगर आप एंड मोमेंट पे सब
इंट्रोड्यूस करते जाओ कि अभी ये भी रखना है वो भी रखना है, देन योर फंक्शनैलिटी माइट नॉट सफाइस प्रॉपरली। तो वो प्रॉब्लम उनको जो डिजाइन कर रहा है उनको भी होगी, जो आपको दे रहा है मॉड्यूलर किचन का पूरा सिस्टम उनको भी ये प्रॉब्लम होगी। तो किचन प्लानिंग करने से पहले आपकी नॉलेज और आपकी जो क्या यूटिलिटी है वो आपको वेल प्लान होनी चाहिए, और यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ इट। पर आपने जैसा बोला वेल प्लान्ड होनी चाहिए, बट ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली आज छोटी है, कल फैमिली बड़ी होगी। आज किसी ने मॉड्यूलर किचन जो अपने हिसाब से बनवाया है, बट कल उसकी रिक्वायरमेंट शायद बड़ी होगी, तो क्या वो मॉड्यूलर किचन को एक्सपैंड कर सकता है? एक्सपेंशन हो सकता है, बट स्पेस भी होनी चाहिए आपके पास एक्सपेंशन करने के लिए। एक्सपेंशन अगर स्पेस है तो एक्सपेंशन पॉसिबल रहेगा वेरी मच। मतलब वो उसकी लुक्स, मगर वो जो लुक्स आ गई हैं पहले, सेम लुक को मैच करना पॉसिबल होगा? सेम लुक को मैच करना पॉसिबिलिटी डिपेंड्स ऑन योर यूजेज बेसिकली, कितने साल पुराना है और अब आप कितने साल के बाद नया एक्सटेंशन कर रहे हो, तो वो डिफरेंस थोड़ा जो नया और पुराना फिनिशेस में है वो और डिपेंड करेगा कितने साल हो गए। हाँ, तो हर साल कुछ ना कुछ बदल ही जाता है। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू प्लान फॉर फ्यूचर कंसिडरिंग योर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, एंड अगर आप एक्सटेंशन का या वो मिनिमल रखे तो इट इज बेटर फॉर प्लेसेस लाइक किचन। बिल्कुल सही। सो बेसिकली एक जो होम मेकर है वो एक बेसिक सी क्या गलती करता है मॉड्यूलर किचन डिजाइन करते वक्त या बनाते वक्त? Many, that as I said कि it should be well planned, आपकी एक्सरसाइज पहले से होनी चाहिए, आपका स्टोरेज सिस्टम कितना है, आपको कैसे क्या प्लानिंग करनी है, वो आपको खुद से आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इफ नॉट देन यू कैन, जो आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं आपको उनको डिलीवर करना है, कंसल्टेंट है उनको डिलीवर करना है आपको, एंड कितने अप्लायंसेस आपको यूज करने हैं आपको वो पहले से पता होने चाहिए। अगर आप प्लानिंग हो गया सब आपने डिलीवर कर दिया और फिर आपको याद आ रहा है कि नहीं नहीं अभी, बिकॉज प्लानिंग के साथ साथ एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है, प्लम्बिंग पार्ट है, दैट इज ऑल्सो इन एडवांस आपको ये सारा फैसिलिटी डेवलप करनी है किचन में। सो फर्स्ट स्टेज इज योर सिविल वर्क, कंस्ट्रक्शन लेवल पे जो सिविल वर्क होता है वो एक फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल की प्लानिंग हो जाती है, प्लम्बिंग की प्लानिंग हो जाती है। उसके बाद अपना बेसिक स्ट्रक्चर काकेस का स्ट्रक्चर आता है, सेकंड स्टेज वो आता है जहाँ पे आपका सारा स्टोरेज सिस्टम प्लान हो जाता है। थर्ड इज फिनिशेस, उसके ऊपर लेयरिंग जो शटर्स की जो है, और लास्ट इज इक्विपमेंट्स। हाँ, तो अभी आप जैसे सिविल और इलेक्ट्रिकल का फेज आपका चला गया है, सब काकेस उस हिसाब से डेवलप हो गए, फिर आपको फिर याद आता है कि ये इक्विपमेंट तो मुझे यहाँ पे रह गया, तो वो भी वो इलेक्ट्रिकल या सिविल वर्क वापस तो हो नहीं सकता वंस एवरीथिंग गेट फिनिश्ड। हो सकता है बट इट इज एट अ कॉस्ट, थोड़ा टीडियस हो जाएगा। इट इज एट अ कॉस्ट आल्सो। प्री प्लान में सारे कागज वो में डिजाइन होते हैं इन मॉड्यूलर किचन, सो इवन एवरी मिलीमीटर काउंट्स। तो उसमें वहां पे आप थोड़ी भी गलती करो तो इट्स अ कॉम्प्रोमाइज, गैप आएगा, फिर वो गंदा, फिर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही है। अभी आपने तो बहुत सारे टिप्स दे दिए कोई भी किचन डिजाइन करने के लिए, ठीक है ना। अभी इसका टेक अवे अगर मैं बोलता हूँ, अगर यहाँ पे अगर इस जगह पे, सो अभी जैसे मेरे को अगर कोई भी डिजाइन करना है मॉड्यूलर किचन, तो इक्विपमेंट्स आज हैं मेरे पास, आज नहीं है मेरे पास, कल आएंगे, तो मुझे उसका प्रोविजन पहले से रखना पड़ेगा। डेफिनेटली इट शुड बी प्री प्लान। अगर वो प्रोविजन पहले से नहीं रखा है तो हम फिर बाद में उसको एक्सपैंड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो दोस्तों, मॉड्यूलर किचन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। आज हमने समझा मॉड्यूलर का मतलब कस्टमाइजेशन प्लस कन्वीनियंस। मटेरियल्स एंड फिनिशेस मैटर्स एज मच एज डिजाइन। प्लानिंग पहले करो, एग्जीक्यूशन तो उसका रिवॉर्ड होता है। और स्मार्ट स्टोरेज, सही लेआउट और ड्यूरेबल फिनिशेस मेक्स ऑल द डिफरेंस। मोना जी, आपके एक्चुअली ये मॉड्यूलर किचन के डिजाइन ने, इसमें तो हमारे पूरा तड़का ही, आपका मसाले का पूरा तड़का लगा दिया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगला एपिसोड होगा अबाउट होम ऑटोमेशन, कैसे हमारी लाइफ इजी और कन्वीनियंट हो जाती है। मैं हूं आपका दोस्त ऋषिराज कैथ और ये था ब्रिक बाय ब्रिक, जहां हर ब्रिक ले आए आपको अपने ड्रीम होम के एक और कदम करीब।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक चूज स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइज एंड टेक केयर।